Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss unsaturated hydrocarbons. Students, in unsaturated hydrocarbons, we will discuss about alkenes and alkynes. Okay, students? So, let's get started. So, students, in previous video lecture, we have learned about saturated carbon compounds. So, today we will discuss about unsaturated carbon compounds. Students, what do you mean by unsaturated carbon compounds? Compounds of carbon and hydrogen that contain one double covalent bond between carbon atoms. Students, note that point, between carbon atoms, or a triple bond between carbon atoms are called saturated hydrocarbon. Students, note that point. जो डबल बॉन्ड की बात कर रहा है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं कर रहा. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. Since all the bonds of carbon are not fully utilized by hydrogen atoms, more of these can be attached to them. Thus, they undergo addition reactions, add on hydrogen, as they have two or more hydrogen atoms less than the saturated hydrocarbons. Students, सब जो हैं कार्बन जो हैं इन्हीं बॉन्ड्स के साथ खुद को जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसीलिए हाइड्रोजन्स की एडिशन भी होती है. Students, so unsaturated carbon compounds can be divided into two types, that is alkenes and alkynes, depending on the presence of bonds, triple or double bond. If it is double bond, then it is called as alkenes. If it is triple bond, then it is called as alkynes. Students, ध्यान देना रूट वर्ड पे, एक इन है और एक आइन है, दोनों चीज़ों पे ध्यान देना अच्छे से, इन और आइन पे. इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड. एंड जो हमने अल्केन पढ़ा है, एन का मतलब, जो हम अल्केन कर चुके हैं, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. इन मतलब डबल बॉन्ड एंड आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. ये मेन चीज़ जो है आपको याद रखनी है, रूट वर्ड्स याद रखने हैं. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अल्कीन्स एंड एल्काइन्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ double or triple bonds respectively. If there is double bond, then we can call it alkenes, and if there is presence of triple bonds, we can call it as alkynes. So students, I hope this is clear to you. So students, now move on to alkenes. So students, alkenes, what do you mean by alkenes? The simplest alkene, ethene, has two carbon atoms joined by a double bond. Alkenes क्या होते हैं? वो compounds, वो hydrocarbons in which there is a presence of double bond. So ethene has two carbon atoms. Simplest alkene क्या है? ethene है. अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि मीथेन जो है वो उसमें इन क्यों नहीं बनता? बिकॉज बच्चे, हमें यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, बट मीथेन कंसिस्ट ओनली वन कार्बन. सो मीथेन के केस में एल्कीन नहीं हो सकता. सो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे फर्स्ट एल्कीन क्या है? इथीन, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स. सो मीथेन के केस में ईन्स वाला एल्कीन्स शो नहीं होते. So, the simplest alkene, ethene, has two carbon atoms joined by a double bond, and its molecular formula is C2H4. Students, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4. एंड एज यू कैन सी हियर, इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताया गया है. एथलीन, एथीन, इसका डॉट स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. सो किस तरीके से है? C एंड C. C ने जो है अपने जो है टू जो है इलेक्ट्रॉन्स को मिड में रखा एंड टू इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर किया एंड हाइड्रोजन के साथ टू बॉन्ड्स बनाई. 2 बॉन्ड्स यहाँ पे, 2 बॉन्ड्स वहाँ पे, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गई. एंड कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनी? डबल बॉन्ड. सो ethene is the simplest alkene. Students,
Similar to alkanes, alkenes also form a homologous series of compounds in which each member differs from the next one by a CH2 unit. Okay students, so पढ़ते हैं इसकी होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स के वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बारे में, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बच्चे एल्कीन्स को हम कौन से जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. Okay students, this is the general formula in case of alkenes, which represents the number of carbon atoms in the alkene molecule. Okay students, now move on to the molecular formula and homologous series in case of alkenes. Okay students, structures of alkenes. मीथेन में क्यों नहीं बन सकता बच्चे? बिकॉज मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. इट कंटेन्स ओनली वन कार्बन. तो हम कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है. सो इस केस में हम एल्कीन्स को शो नहीं कर सकते. सो फर्स्ट जो आपका एल्केन बनेगा दैट इज इथीन. सो बच्चे क्या था जनरल फॉर्मूला इसका? CnH2n. इस जनरल फॉर्मूले को देख के हम वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. अब आपको प्रेफिक्सेस तो याद है, सिर्फ इसका रूट वर्ड चेंज हो गया. यहाँ पे क्या बन गया? इथ प्लस रूट वर्ड क्या आ गया? इन. सो इसने क्या बना दिया? इथीन. अब आपका यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? इन. ओके स्टूडेंट्स, सो इथीन का स्ट्रक्चर, इथीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Cn. इथीन क्या है? प्रीफिक्स 2 कार्बन नंबर, सो C2. H क्या बन जाएगा? 2 × 2 4. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C2H4. अभी हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखानी है. दैट मीन्स देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो कार्बन अपने 2 पेयर यहाँ रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये भी यहाँ पे. अब इन दोनों को और कितनी बॉन्ड्स चाहिए? 2. यहाँ भी शो कर सकते हो, यहाँ भी शो कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ हो गए. ठीक है, कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8. कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. यहाँ भी कार्बन का. सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया बच्चा? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. 1 2 3 4 1 2 3 4. So this is the structure in case of ethene. Next one is बच्चा, next one क्या आ जाएगा? Next one is propene. रूट वर्ड चेंज हो गया, इट्स प्रोपीन. सो प्रोपीन के केस में आपका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 एंड H क्या हो जाएगा? 2n है, 2n है आपका, तो H क्या बन जाएगा? 2 3 6. सो C3H6. 1 2 एंड 3. बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना आने चाहिए और आपको क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर्स भी बनाना आने चाहिए. सो बच्चे कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनानी है? 4 बॉन्ड्स. सो अगर ये यहां डबल बॉन्ड बना देता है 1 2 3 एंड 4, इसने कितनी बनानी है? 2 इसकी ऑलरेडी बनी है, तो ये यहाँ पे एक ही बना सकता है. एक ये यहाँ बनाएगा, इसकी यहाँ एक बनी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. क्योंकि बच्चे हमें हाइड्रोजन को, अगर ये यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा तो ये 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे. सो कितने हाइड्रोजन होंगे? फिर ये वाला भी खत्म हो जाएगा. 1 2 3 4, बट हमें तो 6 चाहिए. सो बच्चे ये यहाँ पे 2 करेगा शेयर. 1 2 3 4. एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक ही यहाँ करेगा और यहाँ पे. हमें हाइड्रोजन के नंबर्स को भी सेटिस्फाई करना है बच्चे. कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनती है वो सभी कार्बन और कार्बन एटम्स में नहीं बननी. पूरे स्ट्रक्चर में किसी एक कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड. इस स्ट्रक्चर में कहाँ बनेगी? C डबल बॉन्ड C. यहाँ C सिंगल बॉन्ड C है. ये हाइड्रोजन के साथ इसकी 4 बॉन्ड्स हो गई कंप्लीट. इसके पास 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. बच्चे अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता, देखें यहाँ पे, अगर ये यहाँ डबल बॉन्ड बना देता इसके साथ भी, सो 1 2
इसकी तो 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगर इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना दी तो यहाँ तो इसको 2 ही चाहिए, इसने यहाँ बना दी, इसको यहाँ भी 2 ही चाहिए। तो इसके कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 1 2 3 4, बट आपको कितने हाइड्रोजन है आपके फॉर्मूले में? 6। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, इसीलिए आपकी डबल बॉन्ड तो चाहिए, बट किसी भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्कीन ही बोलेंगे। अब इस केस में बच्चे आपके प्रोपीन के केस में आपके 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कैसे? पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है उसको चेंज करके। सो पोजीशन चेंज करेंगे इस तरीके से, इन चीजों को जहां पे ये पोजीशन चेंज कर रहा है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसका एक और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? हम यहाँ इस और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहने देंगे, ठीक है, लेकिन हम इस और इस कार्बन के बीच में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। इस तरीके से। सो यहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है 1 2 3 C3 H 1 2 3 4 5 6 H6 बॉन्ड्स भी कर सकते हो काउंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो आपके अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे? ब्यूटीन। नेक्स्ट वन इज ब्यूटीन। सो स्टूडेंट्स, ब्यूटीन का क्या बन जाएगा? C4H 2 4 8। सो कैसे बनेगा बच्चे? 1 2 3 एंड 4। ध्यान से बच्चे, आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी शो करनी है। सो अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड शो करें, इसकी 2 बॉन्ड्स हो गई, 1 2 4 हो गई। इसके पास डबल बॉन्ड एक्चुअल में है, एक यहां हो गई, एक ही कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास यहां एक ही है, एक यहां हो गई, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास यहां है और कितनी चाहिए? 3। तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए कंप्लीट। इसी तरीके से बच्चे अब यहाँ पे कितने कार्बन के बीच में कितनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं? 1 एंड 2। ऊपर प्रोपीन के केस में 3 कार्बन्स थे, 2 पोजीशंस चेंज हुई, 2 पोजिशनल आइसोमर्स बने। अब इसके केस में 3 बनेंगे। एक स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कर दे, एक अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे। ये भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। यू कैन ड्रॉ बाय योर ओन, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पोजीशन को चेंज करके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। आप इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। आप सबका ये होम असाइनमेंट है कि आपने जो है इसको क्या करना है, आपने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इन स्ट्रक्चर्स के ड्रॉ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज पेंटीन। इन कर रहे हैं, सो रूट वर्ड इज इन। तो आपका प्रीफिक्स क्या आ गया? C क्या आ गया? 5 एंड H 10। 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चे यहाँ कार्बन के बीच में कितनी स्पेसीज है? 1 2 3 4। दैट मीन्स इसके कितने पोजिशनल आइसोमर्स बनेंगे? 4। अभी हम अगर यहाँ डबल बॉन्ड शो करते हैं तो कार्बन के 1 2 3 4, इसकी डबल बॉन्ड हो गई 2, ये 3 बॉन्ड, एक यहाँ बना देगा। इसकी एक यहाँ है, एक यहाँ, 3 4। इसकी भी सिंगल यहाँ पे, एक यहाँ हो गई, 3 4। इसकी भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो बच्चे हमारे इस पे भी कितने हैं? 10 ही है, C5H10। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पेंटीन। अब बीच से कोई ले लेते हैं बच्चे, कुछ जो है बीच में वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, बीच से कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ऑक्टीन ले लेते हैं बच्चे। सो ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C8 एंड H 2 8 16। किस तरीके से बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इस तरीके से बनेगा। C और C के बीच में कहीं बीच में ले लेते हैं डबल बॉन्ड।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ देखते हैं 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So students, hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. हमारा फॉर्मूले में भी 16 था. सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ऑक्टीन. इसी तरीके से आपने जो है एल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है. अभी हम जो है कोई और ले लेते हैं बीच से. जैसे बच्चे हमने ले लिया, हम ले लेते हैं हेक्सीन. सो बच्चे हेक्स मतलब C6, H2N C6, 2 6 12. किस तरीके से बनेगा? 1 2 3 4 5 and 6. बीच में ले लेते हैं डबल बॉन्ड 1 2 3 4. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ये. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. सो हमारा फॉर्मूला भी क्या था? C6H12. आई होप इट क्लियर्स टू यू. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सीन. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली कि जो एल्कीन है दे आल्सो रिप्रेजेंट होमोलोगस सीरीज एंड डिफर बाय द ग्रुप CH2. तो चेक कर लेते हैं. जैसे हमारा इथीन का क्या फॉर्मूला था बच्चे? C हमारा क्या था? CnH2n. तो C2H4, उसके बाद C3H6, C4, C3H6, 2 3 6, C4H, 2 4 8, C5H, 2 5 10. सो स्टूडेंट्स चेक करते हैं. C2 3 4 5. C तो हमारा सिंगल ही है. H कितने हैं? 4 2. तो 2 2 का ही गैप है. तो इन एल्कीन्स both the series differ from one another, both the members differ from one another by CH2 group and also shows the homologous series. Okay students, and represented by the general formula CnH2n. Okay students, so this is all about alkenes. In the next video lecture we will discuss about alkynes. Okay students.